हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी हमने वीडियो किया था जिसमें कनाडा बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा था। मैं तो कहूँगी कि वो कह रहा था कि भाई वर्ल्ड को बड़ा वर्ल्ड को नहीं, उनको तकलीफ हो रही थी। वर्ल्ड को तो ऑब्वियसली वो तो ये ऐसे ही बोलेंगे। लोग कहेंगे भाई हमें क्या लेना, तूने पंगे लिए इंडिया के साथ, हमारे तो डिप्लोमेट को भैया फेंका है, और देशों का क्या फर्क पड़ता और है। दूसरे देश कहेंगे कि ऑब्वियसली अगर तुम मेरे देश में भी अपना ज्यादा लाओगे और तुम्हारे वहां पे मेरे कम होंगे तो मैं भी यही करूंगा। हर देश तो यही सोचेगा कि क्या बोल रहे हो या फालतू और बात। देशों को भी शुरू कर देना चाहिए उनके एक्सपेल करने वो के भी लिए। चेक करना चाहिए कि हमारे पास तो नहीं है ज्यादा कनाडा के डिप्लोमेट्स, अगर हैं तो निकालो, इनको इक्वल करो। सबको यही करना चाहिए, मजा आ जाएगा। तो भैया अभी की न्यूज है, कनाडा अनसेफ फॉर अस, जयशंकर ब्लास्ट ट्रूडो फॉर एंटी इंडिया टायरेड अमिड डिप्लोमैट्स, पैरिटी रो। चलो देखते हैं। तो अच्छा जवाब दिया अभी उसने, बोला ना ट्रूडो ने, उसका ये जवाब हमारे यहाँ से अब आ रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन चैनल्स में भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। एंड आई लव दिस न्यू इंडिया भैया, जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। दैट इज हाउ इट शुड बी। ऐसा ही होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से। चलो शुरू करें। Some weeks ago, we stopped issuing visas in पीछे उनके बॉडीगार्ड है। because it was no longer safe for our diplomats to go to work. The relationship right now is going through a difficult phase. We invoked parity because we had concerns about continuous interference. Concerns about continuous interference. कनाडा इज अनसेफ। ये सच बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। Canada's interference in India's affair. Very good. On how do you see the Indo-Canadian situation play itself out? And that's a question on which I think that you'd be very happy to have your response. Let me make three comments there. The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say it's the problems we have are with a certain segment of Canadian politics Segment. and the policies which flow from that. So I want people to understand, in a sense, the extent of the issue. Number two, right now, the big concern which people have is on visas. Some weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. बिल्कुल, हमने तो यही बोला So था। ये their safety and security ये बोला। was the primary reason. वेरी गुड। We had to temporarily stop the issue of visas. We're tracking it very closely. My hope, my expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats. Because as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. वेरी गुड। And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada. That our people are not safe, our diplomats are not safe. ट्रू। So, 100%. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that is something which should happen very, very soon. Finally, there's this whole issue of parity. That the size of how many diplomats there are of one country versus how many diplomats there are of the other country. Parity is very much provided for by the Vienna Convention, which is the relevant international rule on this. But in our case, we invoked parity because we had concerns about continuous interference
in our affairs by Canadian personnel. देखा ये रीजन We haven't made much of कह that रहे थे कुछ public. पंगे हैं. My sense is over a period of time, more stuff will come out, and people will understand why we had the kind of discomfort with many of them which we did. मैं कह रही थी कि इनको निकाल इसलिए खाली नहीं रहे होंगे कि 20-20 या 21-21 इक्वल नंबर होने, ये यहाँ बैठे हुए कुछ गफले लफड़े कर रहे हैं जो हमें पता नहीं चला. जब ये सिचुएशन आई है तो इन्वेस्टिगेशन की गई होगी और उससे गवर्नमेंट को पता चला होगा यहाँ इतने लोगों को क्यों बिठाया हुआ है. इनका कोई और एजेंडा इनसाइड था. बैठ के वहां पे जो है कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, उनके लिए कुछ कर रहे थे, इंटेल गैदर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तभी इंटरफेरेंस हो रही थी इंडिया में. तो पता लग गया, अच्छी बात है, गवर्नमेंट को पता लग गया कि ये बंदे जो हैं जो कनाडा से आए हुए हैं और डिप्लोमैट्स बन के, उसमें से कई इंडियन ओरिजिन के लोग भी होंगे, इंडियन ओरिजिन के लोग जो बन के आए हुए हैं और वो जो है वहाँ एंटी इंडिया वालों के साथ हैं और यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. उनको गवर्नमेंट करिए कर क्या रही है लोग. इनका काम है एम्बेसियों में बैठना और अपने वीज़ा इशू करना और चलाना. ये कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कर रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि लफड़ा ये लोग कर रहे हैं, इंटेल गैदरिंग कर रहे हैं या कुछ जाके किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. हटाओ उनको. और इंडिया ने लिस्ट दी होगी कि हमें ये बंदे जो हैं बाहर तुम करो इमीडिएटली. उन बंदों को बाहर किया, स्पेसिफिकली नाम से भी हो सकता है बताया हो कि ये वाले बताया होगा कि ये बंदों को बाहर करो और इतने हम रखेंगे, इतने हम नहीं रखेंगे. देखा मैं, और उस टाइम जब निकाल रहे थे तो मैंने बोला था कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह से इनको प्रॉब्लम हो रही है और इतने लोगों को बिठा के रखा हुआ है, नहीं तो तुम चुपचाप निकल जाओ. ये कुछ अंदर से लफड़े कर रहे थे. उन्होंने ये कहा है कि देखो यहाँ पे हमारे बंदे जो हैं सेफ नहीं है कनाडा में. बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो जाएंगे ही नहीं ऑफिस. हम वीजा इशू नहीं करेंगे. बिल्कुल बात कहने का मतलब ये है कि हम शट डाउन कर रहे हैं कि हमारा बंदा जाता है वहां पे, तुम एंटी इंडिया वाले बाहर खड़े हुए हैं, अंदर घुस तो कब अटैक कर दे काउंसलर, तुम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर नहीं रहे. रास्ते में आते टाइम जाते टाइम यही कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा बंदा जाएगा कनाडा में अपनी एम्बेसी में, वहां पे एंटी इंडिया वाले अटैक कर दें, तुम्हारी कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो हम क्यों भेजें. तुम तो बल्कि उनको सपोर्ट करते हो. तो हम तो शट डाउन कर रहे हैं, बैठो, तुम्हें कोई वीजा नहीं मिलेगा. तो अब कोई कनाडा से इंडिया आ नहीं सकता. थर्ड पार्टी किसी को दे रखा होगा छोटा मोटा काम के लिए एजेंसी, हमारे बंदे सारे बैठेंगे घरों में, जिसका बहुत इमरजेंसी सिचुएशन और उसको बहुत इंपॉर्टेंट आना पड़ रहा है, उन्हीं को मोस्ट प्रॉब्ली कुछ होगा शायद. तरीका किया होगा, ऑफलाइन है, घर से काम कर रहे होंगे या फिर कोई थर्ड पार्टी करके देगा छोटा मोटा. दैट्स हाउ इट इज. नहीं, और कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनके ऊपर मतलब वहां पे जो इनके कैनेडियंस हैं उनको उनके ऊपर कोई अनसेफ है या कुछ. हमारे पास तो पूरे प्रूफ हैं. वहां पे पोस्टर्स लगे गए थे एम्बेसडर्स हमारे डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट, जिस तरह से वहां पे वो निकाल रहे हैं एम्बेसीज के आगे खड़े होके, जिस तरह से हट कर रहे हैं. हमारे पास तो पूरा प्रूफ है. कनाडा पास उसको प्रूफ ही नहीं है. ट्रूडो को ये पता लगा कि ये वो इंडिया नहीं है जो उसके फादर के समय इंडिया था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. उसके बापू के समय जो इंडिया था वो नहीं है ये. बेटा ये इंडिया बहुत आगे निकल गया है, अब तुम बेबी बन गए हो. तो इस बात को उसे रियलाइजेशन आ रहा है. आई लव दिस न्यू इंडिया. और अपने जो है अपने एलाइज के बाद जा रहा है, एलाइज भी चुप बैठे हैं, बोल रहे हैं भैया हमें तो ट्रेड करना है, तेरे बखेड़े में हम क्यों पड़े. हम नहीं लफड़े में. छोटा मोटा इधर निकाल दो, प्रेस रिव्यू निकाल दो, मगर कोई बड़ा ऑफिशियल कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा. कह रहा है भैया तेरे लफड़े में हम क्यों मरे. देखो तेरी प्रॉब्लम है, तू क्या कर रहा है. एंटी इंडिया बंदे रखे हुए तूने, तो तू बैठ अब मजा कर. बिल्कुल, तुम्हारा लफड़ा अपने आप हैंडल करो. गलत काम कर ही जा रहे हो. अब सबको पता चलेगा कि ये इंडिया चुप नहीं रहता. हम लोग पूरे रूल्स फॉलो करके हर चीज कर रहे हैं. ट्रूडो ब्रेक कर रहा है रूल्स, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं. और इन्होंने बोला है कि हम टाइम आने पे हम प्रूफ देंगे कि डिप्लोमेट्स क्या लफड़े कर रहे थे. हमारे पास वो भी डिटेल्स हैं. ये भी बोला है उन्होंने, जो आपने सुना होगा लास्ट में. तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.